ہم تیار ہیں آزمانا نہیں. فضا سے زمین اور سمندر تک ہر محاذ پر جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل ہیں. پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. تصادم کا راستہ چننا بھارت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ہم نے 2019 میں بھی بھارت کو بتا دیا تھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے. پاکستان کی قوم اپنے ملک کا دفاع ہر قیمت پر کرے گی. ترجمان پاک فوج کی نائب وزیر اعظم کے ساتھ بریفنگ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوال اٹھائے. پہلگام واقعے کے 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا. واقعہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہوا. یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 منٹ میں پولیس پہنچی اور FIR درج کر دی. الزامات کے بجائے پہلگام واقعے کے حقائق جاننا چاہتے ہیں. الزام تراشی کے بجائے بھارتی حکومت کو سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. پولیس نے 10 منٹ کی تفتیش میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان ملوث ہے. بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگایا. واقعے کو فوری طور پر مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا. بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہندو قتل ہوئے. بھارت 50 سال سے اسی ڈگر پر چل رہا ہے. پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو، یہ ان کا مقصد ہے. پہلگام واقعے پر بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. بھارت سیاسی مفادات کے حصول کے لیے دہشت گردی کرتا ہے. بھارت خود ایک دہشت گرد ریاست ہے. پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرا رہا ہے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا میاوالی دہشت گرد حملہ فتنہ خواری سے بھارت کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتا ہے. 4 نومبر کو میاوالی میں واقعہ ہوا تھا. بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک دن پہلے بتایا. بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی پیشگی پوسٹ کی. کب، کیسے اور کہاں حملہ ہوگا؟ جعفر ایکسپریس واقعے سے پہلے بھی انہی بھارتی اکاؤنٹ سے پوسٹیں ہوئیں کہ پاکستان پر نظر رکھیں. جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا. بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اطلاعات دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے. بھارتی فوج کے حاضر سروس میجر کی دہشت گرد سے گفتگو کی آڈیو سامنے آئی. بھارتی فوج کا میجر دہشت گردوں سے پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہے. کلبھوشن یادو کو سب جانتے ہیں، وہ حاضر سروس افسر تھا. بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے. غیر ذمہ دارانہ بھارتی اقدامات سے پورا خطہ خطرے میں ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی DG ISPR کے ہمراہ میڈیا بریفنگ. انٹرنیشنل اور مقامی میڈیا کو بتایا کہ بھارت کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی ناقابل قبول ہے. پاک فوج الرٹ ہے. بھارت کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے. بھارت یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. پاکستان کی قومی سلامتی کونسل کا واضح پیغام ہے کہ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا. پاکستان بھارت کی سہولت کاری سے کی گئی دہشت گردی کا شکار رہا ہے. کئی ملکوں میں لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کے پیچھے بھی بھارت ملوث ہے. عالمی برادری اپنے شہریوں کے قتل پر بھارت کا احتساب کرے. وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون. شہباز شریف نے مارکو روبیو کو خطے کی صورتحال اور پاک بھارت حالیہ کشیدگی سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اقدامات کے رد عمل میں پاکستان کا موقف بھی بتایا. شہباز شریف نے کہا بھارتی اشتعال انگیزی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جاری کوششوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل بھی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے. امریکہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے دونوں فریقین کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا مشورہ. جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. مارکو روبیو کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطہ. پہلگام میں جانوں کے ضیاع پر اپنے دکھ کا اظہار کیا.
भारत ने जो प्रेशर बनाया है लगता है वो हमला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहला ऑप्शन है आलमी ताकतें मुदाखलत करके इसे रोकेंगे या भारत छोटी मोटी कार्रवाई करके कहेगा कि हमने बदला ले लिया। सिविलियंस को अगर निशाना बनाया तो भारत के लिए नताइज बहुत बुरे होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इक़्तिदार में आने के बाद गुजरात के कसाई ने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। गुजरात का कसाब पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आलमी कमीशन या ग्रुप पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर सकता है। तहकीकात करके देख लें पहलगाम हमला स्क्रिप्टेड और फ्रॉड था। मेरे इंटरव्यू को भारत ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गुफ्तगू अफगानिस्तान से मुतालिक थी, कश्मीर से जोड़ दिया। मेरी गुफ्तगू भारत खुद पर चिपकाना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है। भारत की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज ने कयानी और मंदिर सेक्टर्स में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इतलात है। मकबूजा कश्मीर में एलओसी पर कायम भारतीय चकपुतरा पोस्ट को तबाह कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। अवाम को हकायक से बेखबर रखने के लिए दर्जनों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए। भारतीय फिजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फिजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी बौखलाहट का शिकार। एक के बाद एक भारतीय फौजी अफसरान की छुट्टी। जनरल एमवी कुमार के बाद नायब फिजाई सरबराह एयर मार्शल एसपी धारकर को ओहदे से हटा दिया। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। नायब फिजाई सरबराह एयर मार्शल एसपी धारकर ने मोदी का हुक्म मानने से इनकार किया। एसपी धारकर गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे। राफेल तैयारे एलओसी पर जासूसी का टास्क पूरा करने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी रेडार्स के सामने बेबस हो गए। नायब फिजाई सरबराह पायलट्स पर नाखुश। टास्क की नाकामी पर मोदी ने एयर मार्शल एसपी धारकर को बरतरफ कर दिया। भारतीय फिजाइया में शदीद बेचैनी। एक दिन पहले भारत के हाजिर सर्विस जनरल एमवी कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया था। जनरल एमवी कुमार ने बताया पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है, जिस पर मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली मुंतकिल किया। भारतीय फौज में मजीद इस्तीफों और तब्दीली का भी इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये से खित्ते को दरपेश खतरात से आगाह किया। OIC सफ़ीरों का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती, पाक भारत कशीदगी सिफारतकारी के जरिए कम करने की ज़रूरत पर जोर। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म कह चुके गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा भारत इस वक्त जज्बाती हो रहा है, पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से भारत के इल्ज़ामात का जवाब दिया है। बिलावल ने कहा पाकिस्तान एलओसी पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और एलओसी पर फायरिंग से क्या फायदा होगा? दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा भारतीय हुकूमत पानी बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है तो मतलब ऐलान जंग होगा। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरज़म। पाक फौज की जंगी मशकें, छोटे बड़े जदीद हथियारों, टैंकों, तोपखाने, इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत-ए-हाल, जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शक्करगढ़ समेत दीगर इलाकों में जारी हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजी सबूत लीक। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए रॉ ने हमला प्लान किया। मंसूबे का मकसद कश्मीर में खून की होली खेलकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना था। हमले में इस्तेमाल असलहे को शुमाली वज़ीरिस्तान से सप्लाई किए जाने का इल्जाम आयद करना था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद अमरीका और दीगर आलमी ताकतों को पाकिस्तान से मुतनफ़र करना था। हमले की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी करके भारतीय तसल्लुत को तक़वियत देना था। पाकिस्तानी फौज की 12 कोर मशरकी महाज पर मसरूफ करना। बलोचिस्तान में BLA और दीगर दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करने का भी जिक्र। दस्तावेज में अमरीकी नायब सदर JD Vance के दौरे का भी जिक्र। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपये 63 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। स्पेशल वीडियो में बहरी और साहिली महाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इजहार। ये वीडियो हर जहत और हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिल तस्खीर रहने के अज़्म की अक्कास है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर तशद्दुद। आगरा में एक मुसलमान शख्स का कत्ल, हमलावर ने उसे पहलगाम हमले का बदला करार दिया। यूपी में रेस्टोरेंट के मुसलमान मुलाजिम को कत्ल किया। हमलावरों का 26 की मौत का बदला 2600 से का नारा। कश्मीरी और भारतीय मुसलमान तलबा भारत में दहशतगर्द करार। महाराष्ट्र के वजीर नितेश राणे ने मुसलमानों का मौशी बॉयकॉट करने की कॉल दी। भारत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को हमेशा भरपूर जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तानी चैलेंजेस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया वो नाकाम हो चुका। फैसल बॉर्डर का कहना है, भारत इक़दाम का जवाब सूद समेत दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, भारत ने कोई बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो हशर होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। भारत हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है, लेकिन आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भारतीय फौजी जनरल का बयान आया, पहलगाम हमला भारत के अंदर से हुआ। DG ISPR ने भारतीय दहशतगर्दी को एक सबूत दिखा दिए। मोदी के लिए डूब मरने का मुकाम है, ढिठाई छोड़कर इस्तीफा देना चाहिए। बॉर्डर पर टेंशन है लेकिन डरना नहीं है, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हम सब अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पहली बार तो चाय पिलाई, इस बार कुछ और मिलेगा। भारत को दंदान चिकन जवाब देंगे। बलूचिस्तान की अवाम पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। बन्नू के इलाके बरगंतू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। मुकाबले में हलाक 2 दहशतगर्दों की लाशें हमलावर अपने साथ ले गए। आला पुलिस अफसरान ने अस्पताल में दाखिल जख्मी एहलकारों की अयादत की। कराची के इलाके सोराब गोट में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम पंजाब बस अड्डे के करीब लूटमार कर रहा था। मारे गए मुलजिम की शनाख्त न हो सकी।
जामे कराची में पानी की लाइन फटने से स्टाफ कॉलोनी के 400 घर ज़ेर-ए-आब। निकासियाब का काम ताहाल शुरू न हो सका। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है दलदल के बाइस हैवी मशीनरी के इस्तेमाल में मुश्किलात हैं। काम के लिए मजीद 72 घंटे दरकार है। लाइनों में आए दिन टूट फूट साजिश लगती है। एमक्यूएम का कराची में पानी की किल्लत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा यह अमल वाटर कॉरपोरेशन की मिली भगत और माफिया को नवाजने की साजिश हो सकती है। खरबों का टैक्स देने वाले शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मौशी शहरक के साथ नारवा सलूक समझ से बालातर है। फौरी पानी फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी की तुर्की में हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर सिंध और अहले खाना के लिए मज़ार का अंदरूनी हिस्सा खुसूसी तौर पर खोला गया। गवर्नर ने मुल्क की तरक्की और पाक फौज के लिए दुआ की। कामरान तेसूरी ने ज़ायरीन में मिठाई भी तकसीम की। नायाब मादनियात के हुसूल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन में मुआहदा तय पा गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुआहदे के तहत अमरीका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम करेगा। यूक्रेन की खुद मुख्तारी खुशहाली पर मरकूज अमन अमल के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की विनिंग स्ट्रीक टूट गई। लाहौर कलंदर्स को सीजन में चौथी जीत मिल गई। कज़ाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद की टीम 210 रन के ताकुब में 121 पर ढेर। कलंदर्स ने 88 रन के वाज़े मार्जिन से मैदान मारा। हारिस रऊफ ने 4, सिकंदर रजा ने 3 शिकार किए। कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 209 रन बनाए। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर में पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद को हराकर लाहौर कलंदर्स के एतमाद में इजाफा हुआ। लाहौर कलंदर्स की टीम और कराची किंग्स के लिए खतरा बनेगी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हरलमा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल का सिकंदर रजा को खराज तहसीन। मुल्तान सुल्तान्स को बाय बाय कह दिया। प्रोग्राम में अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी के चुटकुले। और लेजेंडरी वसीम अकरम का कराची में शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पुलिस कॉलेज और दीगर शोबों का जायजा लिया। ट्रेनिंग सेंटर में पौधा भी लगाया। एसएसपी फिदा हुसैन जानूरी ने वसीम अकरम का शुक्रिया अदा किया। कहा वसीम अकरम के नाम से नाइट टूर्नामेंट कराएंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन। लेबर डे पर मुल्क भर में आम तातील, लेकिन महंगाई के बोझ तले दबे मसरूफ यौमिया उजरत की तलाश में निकलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मेहनत कशों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराजी तहसीन। पैगाम में कहा आज का दिन हमें उस तारीखी जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने अपने हुकूक और वक़ार के लिए की। गूगल ने भी अपने डूडल पर मेहनत कशों को खराजी तहसीन पेश किया।